ਵੈਲਕਮ 10th ਕਲਾਸ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 8 ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਸਮਝੋਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅਗਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ, ਲੈਟਸ ਲਰਨ ਵਿਦ ਈਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਕਸ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ ਬੇਟੇ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 8 ਦਾ ਕੰਮ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਿਫਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਿਫਰਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿਫਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਕਮ ਹੈ x² + 6x + 8। ਤਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਐਕਸ ਦੇ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਿਫਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਥਰਡ ਨੂੰ ਫਸਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ x² ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੋਸੀਬਲ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਖੰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ 4 ਅਤੇ 6, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 4 ਅਤੇ 2 6 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਮੈਥਡ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਗਲਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਈਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਸਾਈਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸਪਲਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਲੜੀ ਰਕਮ ਦੇ ਟੋਟੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲਿਖ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਪਲੱਸ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਈਨ ਸੇਮ ਦੇ ਸੇਮ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਟਰਮਸ 'ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਟਰਮਸ 'ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਾਮਨ ਕੱਢਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਫ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਬਣਨਗੇ? x ਗੁਣਾ x। ਦੂਸਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? 4 ਹੈ ਨਾ, 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ x। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? x। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚਿਆ? x। ਦੂਜੀ ਰਕਮ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ? 4। ਆਹ ਸਾਈਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 2x + 8। 2x ਦੇ ਟੋਟੇ ਤਾਂ 2 ਅਤੇ x ਹੀ ਬਣਨਗੇ। 8 ਦੇ 2 ਦੂਣੀ 4 ਦੂਣੀ 8। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? 2। ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? x। ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? 4। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ x + 2 ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ x + 4। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 0 ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਰਫ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਪਦ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਫ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 0 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਫਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? -2। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x + 4 ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 0 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? -4। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਿਫਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ? -4। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਸਮਝ ਆ ਗਏ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਫ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਫ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਚੱਲੀਏ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10 of x² plus 7x plus 12 is x equal to -3। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3 ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਇਟਸ ਸੈਕਿੰਡ 0, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਸਿਫਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਬੇਟੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ 9th ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਸਿਫਰ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਸਮ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ x² plus 7x plus 12, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸਿਫਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਾਈਨ, ਇਹ ਸਾਈਨ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥਰਡ ਨੂੰ ਫਸਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 12। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੋਸੀਬਲ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲਿਖ ਲਓ। 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, 4 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, 6 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ 12 'ਤੇ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਘਟਾਓ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, 3 ਤੇ 4। ਤਾਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਅੱਖਰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ 4 'ਚ 3 ਜੋੜ ਕੇ 7 ਬਣਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ 'ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ 'ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ x, ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ x plus 4। ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਸਾਈਨ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਪਲੱਸ ਕਾਮਨ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ 3, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ x plus 4। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਣ ਗਏ ਉਹ x plus 3 x plus 4। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਨਸਰ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਤਾ x ਬਰਾਬਰ -3। ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ x plus 4 ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 0 ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਰਫ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਰ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ 0 ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ -4। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ। ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। x² - x - 12, x² - x - 12। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਥਰਡ ਨੂੰ ਫਸਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ 1 ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਵੀ ਆਇਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 12 ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 12 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਟੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਣਾਓ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮ 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1, 1 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਚੋਂ 3 ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ 1 ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ? 4 ਤੇ 3। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਕਰੀਨ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ 4 ਤੇ 3 ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਘਟਾਓ ਕਰਕੇ 1 ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਘਟਾਓ ਕਰਕੇ? 3x ਘਟਾਓ ਕਰਕੇ, ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ? ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 7 ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1 ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ, ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਲੱਸ।
फिर पहलियां दो रकमां दे विचों कॉमन कढांगे एक्स, तो एक्स माइनस 4 अपने कोले अंदर रह गया। इन्हां दे विचों प्लस का 3 कॉमन निकलेगा तो अपने कोले ब्रैकेट च रह जाएगा एक्स माइनस 4। तो पहला फैक्टर बनिया एक्स प्लस 3, दूसरा फैक्टर बनिया एक्स माइनस 4। जे कॉमन कढ़न च फिर भी प्रॉब्लम है, आप दोबारा डिस्कस कर लैंदे आ। पहलियां आ दो टर्म्स चों कॉमन कढ़ना सी, तो पहली दे मैं फैक्टर बनाए एक्स इंटू एक्स, दूजी दे 2 गुणा एक्स। तो आ एक एक्स जिहड़ा है वो साझा है, वो मैं बाहर कढ़ लिया। पहली कोले एक्स बचिया, दूसरी कोले 4। साइन का मैं कोई फर्क नहीं पाना, वो सेम एज इट इज़ ही रहणगे। ठीक है, हुण दूसरियां दो रकमां ने बेटे जिहड़ियां आ वालियां, तो ये 3x 3x के तो यही बननगे, होर तो बन नहीं सकते क्योंकि 3 अभाज है। तो 12 के बनाओ, 2 दूनी 4 तीए 12। तो बेटा साझा की आ रहा है इन्हां दे विचों 3, तो मैं 3 बाहर कढ़ लिया। पहले कोल की बचिया x, दूसरे कोले की बचूगा 4। तो मेरा ख्याल है हुण इन्नी ज़्यादा डिटेल दे विच मैं तुहानूं कॉमन कढ़ना तो फैक्टर बनाना दसता भी, तुसीं अपनी बुक दे विचों तां सारे क्वेश्चन अपने आप कर लोगे, है ना, कर लोगे ना, बहुत इंटैलीजेंट बच्चे हो तुसीं। तो हुण आपां ने जो फैक्टर बना लिए कॉमन कढ़ लए, तो अपने कोल आ 2 फैक्टर बने हैं। तो हुण आपां इन्हां दियां सिफरां फाइंड करनियां ने। सिफरां लई मैं की दस्सिया सी बेटे कि रफ दे विच इहनूं इक्वल टू 0 करके इक्वेशन सॉल्व कर लो। रफ दे विच क्यों? क्योंकि ये एक बहुपद है बेटे, ये कोई भी इक्वैलिटी का साइन नहीं हो सकता, वरना तो समीकरण बन जाएगी। तो इनू रफ काम दे विच हल कर लो। तो पहली सिफर अपने कोले किन्नी आ गई -3। दूजी जो आप एक्स माइनस 4 नूं बराबर 0 करके देखांगे तो ही आ जूगी अपने कोले +4। तो अपने कोले इस सम दियां 2 सिफरां आ गईयां -3 ते 4। क्लीयर है बेटा? अगे चलीए आप इस तो सम तो अगले दिन दी होम असाइनमेंट ते। तो चैक करो की है वो 1 0 ऑफ ਆਪਾਂ ने एक बहुपद दिता होया x² -5x -36, ਇਹਦੀ 1 0 9 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है, फाइंड इट्स सैकेंड 0। तो कहते यदी दूसरी सिफर पता करो। हुण जिवें आपां ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ एक्टिविटी ਦੇ ਵਿੱਚ फैक्टर बना के किया सी, तो उदां तुसीं ਇਹਦੇ फैक्टर भी बना सकते हो। जे तुसीं लंबी वंड विधि लगाना चाहते हो 9th की तरह या अपने 2.3 की तरह, तो उदा भी लगा सकते हो। जोड़ा आंसर आऊगा वो थोड़ी सैकेंड 0 होगी। हाँ जी, मैं इनू फैक्टराइज मैथड नाल ही कर रही हाँ। x² -5x -36। हाँ जी, तो हुण आपां ने थर्ड नूं फस्ट नाल मल्टीप्लाई किया, 36 आया, नैगेटिव आया। ठीक है, तो हुण इहदे फैक्टर बनाओ। 2 दे टेबल ते 18, 3 दे टेबल ते कित्थे जांदा है 12 ते, 4 दे टेबल ते भी आउंदा है, 5 ते नहीं आएगा, 6 दे टेबल ते भी आउंदा है, 7 ते नहीं आंदा, 8 ते नहीं आंदा, 9 ते 12 ते 18 ते वो सारे आपां लिख ले, एक ही अपनी टेबल ते आऊगा। तो इन्हां दे विच्चों सिलैक्ट करो किनू प्लस या माइनस करके आ सेंटर वाली टर्म बनती है। हाँ जी, सोचो, 1 सेकेंड लई वीडियो नूं पॉज करो तो आंसर देखने की कोशिश करो। यस, वैरी गुड, तुसी कहोगे 9 ते 4। हुण फिर इत्थे माइनस वाला सम है ना, बहुत ध्यान नाल देखो, आप बाहरले साइन कुछ भी चेंज नहीं किते। अंदरले पासे आपां वड्डा अखर पहलां लिखना है, आ वाला बाद चों लिखना है। तुसी सोचो 5 किवें बनदा है, इन्हां नूं घटा के बनदा है, 9 चों 4 घटा के 5 बनदा है। तो अगली स्टैप हैगा माइनस है, तो अपने फार्मूले के अनुसार इनू खोल लो ब्रैकेट नूं। फार्मूला मतलब माइनस नूं प्लस ना मल्टीप्लाई करना तो माइनस, माइनस नूं माइनस ना मल्टीप्लाई करना तो प्लस। पहले 2 चो कॉमन की निकल रहा है एक्स, अपने को रह जाएगा x -9। दूजे चो कॉमन निकल रहा है 4, इत्थे रह जाएगा x -9। तो पहला तो बन गया अपने को x +4 फैक्टर, दूजा बन गया x -9। जदों आपां बेटा बराबर 0 करके इहदियां जीरोज़ फाइंड करांगे तो वो आउणगियां -4 ते +9। देखो बेटा ये थोनों क्लीयर ने हुण चारे दे चारे सम। तो तुसीं अपनी बुक खोल के बेटे उहदे विच्चों भी इस टाइप के क्वेश्चन करन दी कोशिश करनी है भी सिफरां किवें आपां फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, इस तो बाद आपां इस तो नैक्सट जिहड़ी शीट है उहदा काम भी कंप्लीट करांगे।
जी बेटा, तो हुण आपां पहुँच गए हैं बेटे शीट नंबर 9 ते। शीट नंबर 9 दे विच है अपने कोले डे 31 तो लैके डे 34 तक का काम। ठीक है, तो इहनूं ध्यान नाल सिखो बेटा। आपां पहलां डे 31 का काम करते हैं। हाँ जी, इहदे विच है बेटे प्रीवियस नॉलेज, मतलब तुहानूं पहलां किन्नी क नॉलेज हैगी है ये चैक कर रहे हैं। एज वी नो AX प्लस B ये 1 वेरीएबल है। किहड़ा वेरीएबल यूज़ किया है? AX प्लस B दे विच आपां नूं पता है X वेरीएबल है। ठीक है, तो एंड AX प्लस BY प्लस C ये विच किन्ने वेरीएबल ने? 2। जो आपां लिखते हैं AX प्लस BY प्लस C तो किहड़े-किहड़े 2 वेरीएबल्स ने? X ते Y। ठीक है, तो इन्हें यही जानकारी आपां नूं देनी सी कि तुहानूं 1 वेरीएबल 2 वेरीएबल वाला सारा कुछ पता है। तो हुण इन्हें क्वेश्चन की पूछया, इहदे विच किहड़े ने? पॉलीनोमीअल्स की गल कीती है। इहदे विच इहने इक्वेशनस की गल कीती है। की फर्क दिख रहा है तुहानूं पॉलीनोमीअल ते इक्वेशन, बहुपद ते समीकरण दे विच? इहदे विच कोई इक्वल टू 0 नहीं लगाया गया। इहदे विच इक्वैलिटी का साइन हैगा, इक्वल टू का साइन हैगा, इस करके की है समीकरण, इक्वेशन। क्लीयर है बेटा? हुण क्वेश्चन की पूछे आपां नूं? आइडेंटिफाई पॉलीनोमीअल्स एंड इक्वेशनस। उन्हें आपां नूं ये बहुत सारिया एग्जाम्पल्स देतियां, इहदे विचों आपां बहुपद ते समीकरण की पहचान करनी है। तो सौखा है कि औखा है? सोचो, हुणी आपां आह डेफिनेशन पढ़ी है। तो जिहदे विच बेटा जी इक्वैलिटी का साइन है वो तो होएगी इक्वेशन। ठीक है, तो जिहदे विच इक्वैलिटी का साइन नहीं है वो होएगी अपने कोले पॉलीनोमीअल, पंजाबी दे विच बहुपद। ठीक है, तो इहदे विच समीकरण। क्लीयर हो गया? सौखा ही काम सी। हुण आपां नाल नाल ही इहदी जिहड़ी है होम असाइनमेंट भी करते हैं। हाँ जी, इहदे विच आपां नूं की दिता होया? इन्हें आपां नूं बहुत सारिया एग्जाम्पल्स देतियां, कहते अप्रोप्रीएट पिक्चर्स दे विच भरो। जिहड़े आपां नूं आ चित्र बनाते, स्टार जे बनाते, इन्हां दे विच आपां आंसर भरना। पर पुछ की रहा? पढ़िए जी, पुछ की रहा? पहले चो पुछ रहा है पॉलीनोमीअल इन 1 वेरीएबल। वो वाले पॉलीनोमीअल लिखो, वो वाले बहुपद लिखो जिहदे विच सिर्फ एक ही चल वरत्या गया है। लभो जी फिर, एक ही चल इहदे विच तां है नहीं, होना भी पॉलीनोमीअल चाहिदा है। दिस वन एंड दिस वन, ये 2 लभ गए आपां नूं जिहदे विच बेटा जी आपां ने कोई इक्वैलिटी का साइन नहीं यूज़ किया ते चल भी एक ही यूज़ किया। 5Z प्लस 3 ते एक हैगा 5X माइनस 9। तो अगले दे विच की पूछ रहा है? पॉलीनोमीअल इन 2 वेरीएबल। इसका आंसर आप इधर भरते हैं। हाँ जी, होवे पॉलीनोमीअल मतलब इक्वैलिटी का साइन ना होवे, पर उहदे विच वेरीएबल किन्ने होण? 2। देखो ध्यान नाल, 1 सेकंड लई वीडियो पॉज करो, खुद आंसर चैक करो, फिर जदों मैं दसूँगी तुसी अपना आंसर मेरे नाल मिलाइयो। हाँ जी, लगता तुसी सोच लिया होगा किहड़ी एग्जाम्पल दिख रही है बेटा जी? फर्स्ट वन। हाँ जी, ये हैगी अपने कोले 2 वेरीएबल्स दे विच पॉलीनोमीअल, 2 चलों दे विच बहुपद। तीसरे स्टार च की पूछ रहे हैं? इक्वेशन इन 1 वेरीएबल, एक चल वाले समीकरण। चलो जी, फिर आपां उस तरह ही लभांगे। हरी अप, फास्ट फास्ट लभ लो। मैं तो लिखूँगी ही, पहला तुसी फास्ट फास्ट लभ लो। होवे एक चल, होवे भी समीकरण। देखो एक तो मैनू आ लभ गई। हाँ जी, होर लभो। यस, ये भी लभ गई। बस 2 ही ने, है ना? चलो इत्थे लिख दिए फिर 5Z प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड दैन 4X इक्वल टू 5। क्लीयर बेटा जी? हुण इस तो बाद आपां नूं 4th स्टार दे विचों पुछ रहा है इक्वेशनस इन 2 वेरीएबल, भी इक्वेशन भी होवे ते 2 चलों दे विच होवे। तो लभो जी। हाँ जी, एक तो आपां नूं आ लभ रही है, एक आ भी है, एक
आ भी है। चलो जी तीनों लिखते हैं, फिर आपां नूं 3 मिल गई हुण ये 5, हाँ जी लिखो 5z प्लस 7y इज़ इक्वल टू 2। सैकेंड वन 6 इक्वल टू 3x माइनस 2y। तो थर्ड वन केड़ी है जी 6s प्लस t इक्वल टू 9। क्लीयर हो गए ये चारे दे चारे स्टार्स दे विच की फिल करना आपां। ते अगला स्टार देखो उन्हें पूछया सिर्फ इक्वेशन लिखिया, उहदे विच कुछ भी मैंशन नहीं किया कि वेरीएबल किन्ने चाहिए ने। ठीक है, सिर्फ उन्हें कहा इक्वेशन। तो बेटा जिन्ने भी तुहाडे इस स्टार और इस स्टार के आंसर ने वो दोने इस स्टार दे विच लिख देने हैं, क्योंकि इक्वेशन ही लभियां सी आपां, है ना। फाइन। तो पॉलीनोमीअल तो जेड़े तुहाडे बेटा जी फस्ट वाला, थोड़ा कलर चेंज कर लैने तुहानूं आइडिया हो जाएगा, दिस वन एंड दिस वन, इन्हां दे जेड़े भी आंसर सी वो तुसीं इस स्टार दे विच लिख देने हैं, क्योंकि आपां नूं सिर्फ और सिर्फ पॉलीनोमीअल्स पूछे हैं। गॉट इट, लग गया पता जी। चलिए आपां नैक्सट डे दी एक्टिविटी ते लैट्स मूव। ओके, डे 32 इहदे विच आपां बेटा जी की करना है, इहदे च इहने पुछया कंपेयर द इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 8 विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कहते इस इक्वेशन की तुलना इस इक्वेशन नाल करो तो ABC का मुल पता करो। याद आ रहा है कुछ बेटा जी 9th च पढ़िया होया है ना, उस आपां सम कीते सी। पर उत्थे कई बच्चे की गलती कर देंदे सी कि जिमें एज इट इज़ लिखिया उवें तुलना कर दो। नो, देखो ये विच सारी दी सारी जिहदे नाल आपां तुलना करनी है, सारे दे सारे जिहड़े गुणांक कोफिशिएंट्स टर्म्स जो भी हैं वो अपने कोले लैफ्ट साइड ते हैं, ते राइट साइड ते अपने कोले सिर्फ और सिर्फ 0 है। तो जिन्हों आपां कंपेयर करना है उहदे विच माइनस का जिहड़ा 8 है वो राइट साइड ते है, तो फिर ये कंपैरिजन सही नहीं ना होना। आपां हुण बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटे जे किसी घर का बहुत वड्डे सारे घर नाल कंपैरिजन करिए तो सूट नहीं ना करता, है ना। तो जिहड़ी चीज़ इक्वैलिटी च ही नहीं हैगी, सही सही दिख ही नहीं रही सेम सेम, आपां उहनूं किवें तुलना कर लांगे। तो पहला इनू सही बनावांगे। किद्दां बेटा, मैं वो 8 नूं भी इधर ले आई, मेरे कोल इक्वल टू ते रह गई 0। फिर मैं जिहदे नाल कंपेयर करना है वो नाल ही लिख रहा। चलो जी, हाँ जी करिए कंपेयर। तो ए दी वैल्यू सौखा सी ना, बॉक्स बनाने तो बाद पता लग गया ना कि आप फटाफट लभ लिया। हाँ जी, बी एंड सी एंड वी हैव डन, कर लिया आपां ने यह क्वेश्चन कितनी सौखी तरह। तो पहला जिन्हों जिहदे नाल कंपेयर करना है उस शक्ल दे विच उहनूं लैके आओ, फिर उस तो बाद बस कंपेयर कर दो। ABC की वैल्यू आपां फाइंड करती। चलिए यदि होम असाइनमेंट ते सेम क्वेश्चन है ना, चलो करिए जी। इन्हें की कहा है, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 दैन फाइंड ABC। हुण 2 सम दिते ने आपां नूं, एक ए वाला एक ए वाला सम है, दोनों नूं कंपेयर करके आपां कैपीटल A कैपीटल B ते कैपीटल C वड्डी ABC लिखी हुई है ना, उन्हां दे मुल पता करने हैं। तो पहला मैं फस्ट इक्वेशन लिख ला जिन्हों कंपेयर करना है, उसके नीचे नीचे लिख लो जिहदे नाल कंपेयर करना है। ठीक है जी, हुण आपां कंपेयर कर दो। तो ए दी वैल्यू कितनी दिख रही है 4, बी दी वैल्यू -3, सी दी वैल्यू -6। बस ये विच साइन भी नाल ही चकने आपां। ठीक हो गया पहला क्वेश्चन। हुण आपां करदे हां इसदा नैक्सट पार्ट। अपने कोल जो इक्वेशन है उहदी राइट साइड ते भी एक डिजिट दिता होया, तां की दस्सिया सी मैं तुहानूं भी उहनूं आपां इधर लैके आना है, इक्वल टू 0 रह गया। बट इस विच की ट्विस्ट देता, इहदे विच देखो जिहदे नाल कंपेयर करना है वो हैगी है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। की आपां X वाली टर्म नूं Y वाली टर्म नाल कंपेयर कर सकते हैं?
नहीं कर सकते, है ना। तो फिर की करना पऊगा, उपर वाली टर्म नूं होर चेंज करना पऊगा। एक्स वाली रकम पहलां लिखो, वाई वाली बाद चों लिखो, फिर कॉन्सटेंट लिखो। हुण कंपेयर कर दो, ए दी वैल्यू भी आ गई, बी दी वैल्यू भी आ गई, सी दी वैल्यू भी आ गई। क्लीयर हो गया बेटा ये तुहानूं? ठीक है, चलिए आप अपने नैक्सट डे ते काम ते। हाँ जी, ये जिहड़े क्वेश्चन ने बेटे ये तुहाडी 3.1 दे विच आउंदे ने। स्टेटमेंट्स बनाउणियां, इक्वेशनस बनाउणियां स्टेटमेंट नूं पढ़ के। तुहानूं कुछ पंजाबी जां इंग्लिश दे विच लिखिया मिलेगा, तुसीं उहनूं मैथेमैटिकली एल्जैब्रिकली उस सिचुएशन नूं रिप्रजेंट करना है। चलो पढ़िए बेटा आपां इहनूं। राहुल वेंट टू अ शॉप एंड परचेज्ड 4 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स फॉर ₹18। राहुल एक दुकान ते गया, उसने 18 रुपए विच 4 पेन ते 6 पेंसिलां खरीद लियां। उसके फ्रेंड ने 36 रुपए लगाए ने, 8 पेन ते 12 पेंसिलां खरीदियां ने। तो जो ये सिचुएशन बनी है कहते इनू एल्जैब्रिकली रिप्रजेंट करो। तो हुण इत्थे पढ़ के तो आपां नूं ना तो पेन बारे पता है ना पेंसिल बारे पता है ना। तो आपां इहदे विच एक एक पेंसिल की जिहड़ी कीमत है वो लैट कर लैंदे आ। लैट कॉस्ट ऑफ 1 पेन किन्नी एक्स, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल किन्नी है वाई। हुण इहदे पंजाबी च किवें लिखोगे, एक पेन की जिहड़ी कीमत है वो एक्स रुपए है। अगली लाइन च की लिखोगे, एक पेंसिल की कीमत वाई रुपए है। तो पहली इक्वेशन तुसीं बनानी है, तुसीं पेन किन्ने खरीदे ने बेटे 4 पेन। जे एक पेन एक्स रुपए का आंदा है तो 4 पेन किन्ने दे आउणगे, 4 नूं एक्स नाल गुणा करके पता लगूगा। 6 वो पेंसिलां लैके आया, जे एक पेंसिल वाई रुपीज़ की आउंदी है तो 6 पेंसिलां 6 वाई रुपीज़ दी आउणगियां। टोटल वो दुकानदार नूं किन्ने पैसे दे के आया 18 रुपए। जो टोटल करांगे इन्हां दा तां ही 18 रुपए देवांगे ना, भी जो पेंसिलां भी खरीद लियां पेन भी खरीद ले फिर ही बिल बनूगा। हुण उहदा जिहड़ा फ्रेंड है उहने देखो किन्ने लिते ने पेन 8, किन्नियां लित्तियां ने पेंसिल्स 12 ते किन्ने पैसे दे के आया 36। तो आपां इस सिचुएशन नूं एल्जैब्रिकली रिप्रजेंट करता, वैरी ईजी। चलिए जी इहदी होम असाइनमेंट ते। हाँ जी, होम असाइनमेंट दे विच सेम क्वेश्चन है बेटे, ये तुसीं खुद करन दी कोशिश करियो। आपां थोड़ा जिहा डिस्कस कर लैंदे आ। जिवें 2 किलो ऑरेंज ते 4 किलो ने एप्पल लिते ने, इन्ने पैसे दे के आया। सेम पेन पेंसिल वाली सिचुएशन है। दो अपना ऑरेंजिज नूं मान लिओ एक्स ते एप्पल की जिहड़ी हैगी है उहनूं मान लिओ तुसीं वाई कीमत नूं, ठीक है। एक नूं तो उन्हें 2 किलो लिते ने तो उन्होंने 2 नाल मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 किलो लिते ने 4 नाल मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही ₹280 लिख दोगे, ठीक है। तो तुसीं इहनूं खुद करन दी कोशिश करनी है। नैक्सट जिहड़ा हैगा बेटे अपने कोले ये भी तुहाडा 9th का ही काम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इन दिस इक्वेशन इफ एक्स इक्वल टू 2। उन्हें आपां नूं एक समीकरण दिती है 3x + 2y बराबर 12 तो एक उन्हें एक्स का आंसर दिता है बेटे, तो पुछिया आपां नूं कि वाई का आंसर फाइंड करो। तो हुण जदों आपां नूं एक्स की वैल्यू पता है तो आपां इस इक्वेशन दे विच एक्स की वैल्यू नूं पुट कर देंगे तो अपने कोले वाई का आंसर आ जाएगा। शुरू करिए सम नूं करना। तो जिथे एक्स लिखिया होया बच्चे उत्थे आपां वैल्यू भर देनी है 2, बाकी आपां किसी चीज़ नूं भी चेंज नहीं करना। 3 दूनी कितना हो गया 6। हाँ जी, एक समीकरण बन गई। एक चल दे विच 2y आपां इधर ही रख लेना है, 12 उधर ही सी -6। इस तो बाद आपां इत्थे लिख रहे हैं 2y = अपने को 6 रह गया। y कितना आ जाऊगा जी 6 दे बटे जाएगा 2 कट के आ जाऊगा ही अपने को वाई का आंसर 3। तो बहुत सौखा सी ना, जदों आपां नूं एक इक्वेशन दे विच एक वेरीएबल की वैल्यू पता हुंदी है तो आपां दूजे वेरीएबल की वैल्यू कढ़नी हुंदी है तो गिवन वाले की वैल्यू अपनी गिवन इक्वेशन दे विच भर दो, अपने कोले सैकेंड वेरीएबल दूसरे चल की वैल्यू आ जाती है। यह बेटे तुहाडे किहड़े काम आऊगा इस तरह के सम करना, जदों आपां 3.3 तो बाद समीकरण हल करन वालियां विधियां सीखांगे।
ठीक है। अपने कोले 3 विधियां हैगियां ने, जिमें विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड है, तिरछी गुणा विधि जिन्होंने कहने हैं। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚੱਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਦੀ ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਕਸ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, 5x - 2y = 4 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ y ਦੀ, ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ x ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ y ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 6 = ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ 5x = 10 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ x ਆ ਜਾਏਗਾ 10/5 ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2। ਤਾਂ x ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ ਮੈਥ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਲੈਟਸ ਲਰਨ ਵਿਦ ਈਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਾਏ ਬੇਟਾ ਜੀ।